औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। एंड दिस मैसेज गोज़ टू एवरी मुस्लिम फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग इन इंडिया एंड अब्रॉड, all around the world, all of the Muslims, and also to all of the people living in India, including all of the Muslims and people from every community in India. And why? Because all of these different people that we're talking about, most of them are almost completely unaware of the complete catastrophe that is coming their way, simply because they don't have the right lenses, they don't have the right knowledge, they don't have the right tools to even begin to understand how this one technology is going to completely transform this world in ways that has never been seen before. And of course, I'm talking about this one technology called AI. I'm telling you with the utmost sincerity, as a Muslim, knowing fully well that there is many aspects of this technology that are completely overhyped and completely misrepresented by many capitalists just to make some extra money. Okay? And this is why it's very important for us Muslims, especially Muslims living in India, to please wake up and understand that there's something facing you which is far bigger than anything like the internet. Let's take the example of the internet for a second. 30 years ago, internet became a real thing. However, how long did it take for us Indians to catch up to the point that we also have access to the internet at the same level, at the same speed, and the same level of portability, having it on our phones, not just, let's say, on the laptop, which very few people can afford, right? Compared to the internet readiness of those people living in the West who had access to these computers and these phones, and their kids were playing around with computers at a time when our grandparents or parents at the time, right, people at the same age, right, at that time in our communities, they had no idea what the internet is, and their kids, right, in California, right, in 1990, were playing around with technology that our teachers in schools in India didn't even have any idea of what that is and why that's so important and how that's going to change the world. And it's the only reason why we as Muslims got completely beaten up when it comes to the influence of the internet in their lives. Even today, a vast majority of Muslims don't know oftentimes how to use the internet itself to the best of their benefit. And we suffer from it every day today. And I am telling you, not being ready for internet was not even close to a big enough sin compared to how big of a sin it's going to be if you are not ready for AI as a Muslim. In this world, there are people who are evil to the core, and they are going to use these things against us in every way, shape, and form. It is completely logical for us to at least have a handle on what all of this technology is and what it does. I am not saying कि हर पर्सन जाके AI इंजीनियर बन जाए, बट अगर आपको बेसिक लेवल पे नहीं मालूम कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्या पॉसिबल है, तो बहुत बड़े बड़े मसले होंगे आपके साथ। दो मेन पॉइंट्स मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। द टू बिगेस्ट फियर्स दैट आई हैव फॉर मुस्लिम्स कमिंग आउट ऑफ दिस AI एज। एंड बाय द वे, ये AI एज 20 साल 30 साल की नहीं होगी जैसे इंटरनेट की थी, ठीक है? इंटरनेट की 90% ऑफ द इनोवेशंस जो हम आज भी यूज़ करते हैं वो पिछले 5 साल में बनी थी,
ठीक है। तो इसी तरह से एआई का जो ये 30 साल कंपेयर ऑफ इंटरनेट जो था, जो 30 साल लगा हमारे हाथ में रिलायंस का जियो पहुंचने में, ठीक है, हाँ, वो एआई में उतना लेवल ऑफ डेवलपमेंट सिर्फ 5 साल में हो जाएगा। आपके पास समय नहीं है। मतलब भाई, मैं आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरे मुस्लिम भाई बहनों के पास दूर दूर तक कोई रेडीनेस नहीं है। When it comes to this technology, they have no idea how big of a change it's going to bring to their lives, how completely unimportant they will become in the economy and the world at large if they don't prepare themselves quickly for this. Okay, now let me tell you those 2 points, जो दो fears है मेरे। पहला ये कि monetarily we will get beaten up so badly compared to the internet. I'll tell you what my actual fear is. Like, honestly, this is what I picture happening. Like, the current trajectory, this is where it is heading. I know nobody can tell the future, but just based on my understanding of how technology influences societies and the रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड किस तरह से बढ़ती है थ्रू टेक्नोलॉजी, राइट, व्हेन वी नो कि एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी खुद अपने आप से फीड होकर और ज़्यादा बनती है, इन द सेंस कि वो टेक्नोलॉजी से कुछ एक चीज़ बना ली तो अब उसी वजह से और भी वही उसी टेक्नोलॉजी से दूसरी चीज़ बनानी पड़ रही है, फिर तीसरी चीज़ में भी वही चीज़ डालनी पड़ रही है। एज अ होल ये टेक्नोलॉजी इसेंशियली लिटरली हर एक सिस्टम के अंदर इस तरह से घुस रही है कि जिस तरह से एक कैंसर फैलता है मेरे भाई, आप लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि किस स्पीड से और कितना कम फ्रिक्शन है इस चीज़ के फैलने का। अगर आपने अपने आप को अलाइन नहीं किया एआई के साथ, तो मैं ये तो नहीं जानता एग्जैक्टली क्या होगा और कैसे होगा और किस तरीके से होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर हमने एआई के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया तो अगले 5 सालों के अंदर में हमारी एवरेज इनकम कंपेयर टू एक ऐसा ग्रुप, मैं बेसिकली ये स्प्लिट मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम नहीं बनाऊंगा, सिंपल सी बात है, दो तरह के लोग होंगे 5 साल बाद। एक वो इंसान जिसने इन 5 सालों में अपने आप को कम से कम एआई के लिए रेडी करने की कोशिश की है, और एक इंसान जिसने इस पे 5 साल ध्यान और नहीं दिया। भैया, 5 साल बाद इन दोनों ग्रुप्स को अगर आप इस तरह से स्लाइस करके और इधर की एवरेज इनकम और इधर की एवरेज इनकम निकालेंगे ना, तो मैं 100% लिख के देता हूँ 5 साल के अंदर में ये रेशियो कम से कम 100 होगा। ओके, और एक टाइम आएगा जब ये रेशियो इस तरह से बदलेगा कि जो लोग उस वक्त भी एआई को अडॉप्ट नहीं किए ना, ड्यू टू वट एवर स्टूपिड रीजन से कम अप विथ, दे विल बी लुक्ड एट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि जैसे हम आज देखेंगे उन लोगों को जो दूसरी सदी में रहते थे। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज है वो इतना तेज़ है। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ गेट रेडी। मैं हंस इसलिए नहीं रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ फ़नी, मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को मेरी बात पे यकीन करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मैं नहीं जी सकूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ होते हुए, लाइक उसका उसका अंत अच्छा नहीं है भाई। और जो दूसरा फियर है मैं वो बता दूँ, और ये उससे बड़ा फियर है। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है ना एआई, ये इंसानों की तरह बात करने वाली सिस्टम, जिसको देख के लगता है ये शायद हमारी बातें समझ पा रहा है, ये शायद हमारी तरह सोच सकता है, यार ये हमसे स्मार्ट भी बन सकता है क्या, ये सारी बातें चल रही हैं। मैं एक लाइन में सीधा सीधी बोल दूं ताकि इस मामले में किसी को कोई डाउट ना रहे, एटलीस्ट एज अ मुस्लिम। सिंपल सी चीज़ है, हमारी अक्ल, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, द पॉइंट कि हम बैठे यहाँ पे अपनी अक्ल और अपने सोचने के तरीके को कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरी चीज़ से, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी अक्ल एक्चुअली में कैसे चलती है ताकि हम उसे एक मशीन में डाल सकें। ठीक है, हमारी कोई औकात नहीं है, ठीक है, कंपेयर टू उसने, उसकी, कि जिसने हमें बनाया है। ठीक है, तो जिसने हमें बनाया है उसको पता है कैसे इस तरह की चीज़ें बनाएं जो खुद अपने बारे में सोचें और अपने से सीख कर, जैसा कि कुरान में लिखा है कि अपने अंदर देखो। मैं बहुत ज़्यादा पैराफ्रेज कर रहा हूँ, मैं नहीं हूँ कुरान नहीं जानता, बट इतना मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला कहता है कि लुक एट द साइंस इनसाइड यू। तो हम इसेंशियली ये जो लोग एआई बनाते हैं वो क्या करते हैं मेरे भाई,
वो जाके सबसे पहले न्यूरो साइंस पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। वो जाके समझने की कोशिश करते हैं हमारा दिमाग काम कैसे करता है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, इन न्यूरो साइंटिस्ट को हमारे दिमाग के काम करने के सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन इन्फिनिटली और चीज़ें हैं जिसका उन्हें कोई आइडिया नहीं है। इसलिए इस बात के लिए मैं फाइनली अपनी बात कंक्लूड करता हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहें कि कभी भी कोई भी इंसान ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनाएगा जो इंसान की अक्ल से ज़्यादा तेज़ एक्चुअली सुपर इंटेलिजेंट हो, क्योंकि ये कुवत सिर्फ और सिर्फ उसके लिए रिजर्व्ड है जिसने सब कुछ बनाया है, ठीक है। बिकॉज आई विल टेल यू व्हाट द एक्चुअल फियर इज। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। द फियर इज सिंपल। आई एम टेलिंग यू दैट जस्ट लाइक मैंने बोला 5 साल ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 5 साल के अंदर में एक कल्ट निकल के आएगा, मुझे नहीं मालूम कौन से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और ये मैं किसी किताब से नहीं बोल रहा हूँ, बस बेसिक सी चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक ग्रुप निकल के आएगा कहीं से जो कहेगा जस्ट लाइक एवरी अदर पीपल हु वर्शिप ये क्रिएटेड थिंग और वो क्रिएटेड थिंग, पीपल विल वर्शिप सम एआई सिस्टम वन डे। एंड ऑल आई एम सेइंग इज रिगार्डलेस ऑफ आप कितने इम्प्रेस्ड हो इन सिस्टम से, उनकी ये वाली बात पे कभी यकीन मत करना कि उन्होंने आपसे ज़्यादा अक्लमंद कोई चीज़ बना ली। ये नाउम्मीदी नहीं अलाउड है। हम इस सिस्टम से हमेशा सुपीरियर रहेंगे। हम खलीफतुल अर्द हैं, ये हमारे लिटरल अकीदे का हिस्सा है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा मेरा फियर है कि प्लीज़ मुस्लिम्स लाइक इस टेक्नोलॉजी को समझ लो, ताकि कोई तुम्हें इसके बारे में गलत आइडियाज़ न दे सके टू द पॉइंट कि आपका अकीदा ही क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है जी। तो ये 2 चीज़ें जी मुझे बहुत ज़रूरी था कि मैं मुसलमानों से और इन जनरल लोगों से बताऊं, बिकॉज़ व्हाट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये टेक्नोलॉजी समझें। आप फाइनेंशियली भी बहुत बेनिफिट करेंगे, आप इंटेलेक्चुअली भी बहुत बेनिफिट करेंगे, और अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चे, एवरीवन नीड्स टू गेट रेडी फॉर दिस। 5 साल का टाइम नहीं है आपके पास, 5 साल नहीं, 1 साल नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ हर 2 महीने पे मेरी पीछे वाली टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाती है। और फिर अगर 3 महीने बाद आप मेरे पास आओगे तो ये 2 महीने की जगह मैं आपसे 15 दिन बोल रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम किस स्पीड पे ये चीज़ ग्रो करेगी, बट मुझे इतना मालूम है कि इसकी ग्रोथ की स्पीड बढ़ती जाएगी, कम नहीं होने वाली, जब तक ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे ना पहुँचे। और हमें उसके लिए रेडी होना बहुत ज़रूरी है, सिंपल।